ग्रेटर टोरंटो एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਰਾਮ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। यात्रा ब्रैम्पटन तो हैमिल्टन तक कई मंदिरों के विच ठहरी। इस बाबत वेखते हैं साडे सहयोगी तरनपाल सिंह दी खास रिपोर्ट। रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज हिंदू सभा मंदिर तो लैके सारे मंदिरों में एक झाकी कड्डी जा रही है, लोगों को इकट्ठे किया जा रहा है, कम्यूनिटी में एक अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। आओ एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं कहना जी इन्होंने लोगों ने साडे हिंदुओं नूं सनातनी जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं एक बन के रखिया दा। सानू जरूरत है अज दे दिन विच इत्थे ਇਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ आई एम इनवॉल्वड इन द टैंपल फॉर 50 ईयर्स। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਸਰਵਿੰਗ ਦਿਸ ਟੈਂਪਲ ਐਂਡ ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ, ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਣੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਸਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ। यात्रा भाजी तीसरी बार साढ़े हिंदू हैमिल्टन समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਰੁਣੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ HCF ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ GTA ਦੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗੌਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। Yeah, well, this mandir was actually a year's long worth of planning. So we actually opened literally like end of November. So it's only been like a few months. And the response we've gotten from the community has just been extraordinary. This, I would say, is one of our first major events that we've done. And yeah, in terms of the Ram Mandir, I mean, it's just beautiful. I mean, having Ram Lala kind of equivalent like to Ayodhya in Canada is a massive deal. And I think we were one of the first ones to have a fully dedicated Ram Lala Mandir. So What's the community reaction you have been getting it for the whole Mandir? Yeah, so people have been very much into it. They've been coming. They've been getting very emotional. We had one person come in, they were very emotional because they were from Ayodhya. They saw the riots. They saw everything that happened in history. So they're very emotional to see, like, in Canada, we have Ram Lala Mandir. So the community, as usual, has been absolutely brilliant from all directions. We've been getting love and support. I'm very, very happy and blessed to be a part of this organization. This organization started due to multiple effects. One is maybe a dream to bring Ram Lala here after Ayodhya, because I wanted to go to Ayodhya myself, but I couldn't go. So I thought, why not Ram Lala ji can come from Ayodhya all the way, and I'm getting goosebumps right now, all the way to this land and bless us, and we can be a part of the celebrations of Ram Lala and his blessings with all our family and children and loved ones. So see, मेरी और डॉक्टर सुराना जो हमारे दूसरे हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे भाई हैं, तो वहाँ पर मैं ये सोचता हूँ कि ये नामकरण हमारे बड़ी सोच समझ का एक नतीजा है, क्योंकि हम ना अपने हिंदू, सिखों, बुद्ध, जैन इनमें कोई हम अंतर नहीं समझते हैं। इसीलिए मैंने रामलला को इसलिए सामने रखा है कि ये सब हमारे जितने सनातन हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि कनाडा में हम जब देश छोड़ के यहाँ आए हैं भारत से, हम सब मिल के अपनी कम्युनिटी को एक साथ आगे ले जाएं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग, सही दर्शन की तरफ ले जाएं। और उम्मीद करता हूँ कि भगवान राम जरूर इसमें हमें सहायता करेंगे। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है और आज के दिन हमारा
22 जनवरी हमारे लिए रिस्टोरेशन ऑफ द राम टेम्पल हुआ है और ये हमारे लिए अयोध्या का एक हमारा स्पेशल डे है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। और मैं सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस जगह पे इस पावन अवसर पर आकर श्री राम की महिमा का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रद्धालुओं को। बहुत हर्ष है कि युगल कुंज के अंदर राम यात्रा आई है और हम स्वागत करते हैं। और हम युगल कुंज की तरफ से जो इतनी पब्लिक आई है, बहुत हमारे लिए बड़ा हर्ष की बात है। ये राम जी की यात्रा त्रिवेणी मंदिर पहुंच चुकी है। साढ़े नाल कुछ वॉलंटियर्स जुड़े ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। राम जी की ये यात्रा हम लेके चले हैं, पहले हिंदू सभा में थे, अब यहाँ पहुंचे त्रिवेणी मंदिर में। कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा को आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये यात्रा, क्योंकि ये श्री राम जी की यात्रा है। मंदिर जो राम मंदिर अयोध्या में जो रिस्टोर हुआ है उसके लिए हम ये सालगिरह जैसे मनाते हैं, तो हमें बहुत सौभाग्य मिल रहा है कि राम मंदिर के यात्रा का हम पार्टिसिपेट हो पाए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि यह यात्रा इस मंदिर तक आई ताकि हम लोग इसके भागी बन सकें। पहली बात तो ये है कि हम सब श्री रामचंद्र जी के अंश हैं बेसिकली, और यहाँ पे कनाडा के अंदर, ब्रैम्पटन के अंदर हर साल काफ़ी जनता जो है यहाँ पे है श्री राम जी के इस अवसर को मनाते हैं, जो अलग अलग मंदिर से होके चलती है। तो अभी हम ब्रैम्पटन गोल्ड टेम्पल से होते हुए अभी त्रिवेणी मंदिर पहुँचे हैं और आगे ये जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी आगे के मंदिर में, और हैमिल्टन तक हमारा ये जाएगा। और पर्पस सिर्फ यही है कि जो हमारा मैसेज है जो पीस का है वो पूरी दुनिया तक फैले और हम सारे जितने भी वासी हैं मिलजुल कर रहें और श्रद्धा से श्री राम जी का नाम जाप करें। Jai Shri Ram, amazing experience. And as they were saying inside, this yatra began at Triveni Mandir in 2024, and it's just so beautiful to do, especially now that Shri Ram Mandir has been restored in Ayodhya. It's very emotional, very devotional for so many thousands of devotees. Even those who are not coming in person, they're seeing the pictures online, they're seeing the recordings, and they're very, very happy. All of the kids who are from Bharat, from India, it's very important for them to celebrate all of their cultural festivals, and this wonderful country also encourages us to have a multicultural society and to celebrate all of our programs, religious and cultural. So we should definitely be celebrating every single event. बहुत ही सुंदर अनुभव है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है तरनजीत जी अनुभव जो इसका है कि तीसरी यात्रा जैसा आपने बताया, 3rd एनिवर्सरी है श्री राम मंदिर का रिस्टोरेशन। और नॉर्थ अमेरिका में भारत से इतने दूर होते हुए अपने कल्चर को, अपने भगवान को इस तरह से हम लोग अलग अलग GTH में लेके गए। ब्रैम्पटन हिंदू सभा से हमने शुरू करा सुबह मॉर्निंग में 8 बजे और अभी लगभग 8 बजने को हो रहे हैं, तो 12 घंटे की लंबी जर्नी रही है। बट अगर आप पूछेंगे तो थोड़ी सी भी थकावट नहीं है, क्योंकि राम जी की ऊर्जा है अंदर और सभी लोग जितने लोग साथ में चल रहे हैं, आप भी सुबह से साथ में जुड़े हैं 8 बजे से, और एक शिकन तक नहीं है, तो ये राम जी की ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा को लेके हम लोग इस सारे मंदिरों में गए हैं। हमारा ध्येय इतना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो अपने कल्चर को जाने, अपने भगवान को जाने, जो हमारी सबसे सेक्रेड साइट है अयोध्या में राम मंदिर के, उसके बारे में जाने। और बहुत सारे रास्ते में मंदिर आए, एक जो नया मंदिर है कैनेडियन सनातन मिशन, इतना विस्मयकारी दृश्य, जितने बच्चे थे वो 20 साल से कम उम्र के भजन कर रहे थे। तो ये सब देख के जो ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्रेरणादायक है। जी, जब हम इसकी बात करते हैं, कैसे देखते हैं वॉलंटियर्स का, क्योंकि वॉलंटियर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो वॉलंटियर्स कैसे आपके साथ जुड़े, जो दर्शक थे आपके साथ कैसे जुड़े, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकें। आगे के क्या प्लान्स हैं, अब आगे क्या कुछ प्लान कर रहे हैं इसके बारे में? आगे प्लान यही है कि हम लोग जो एजुकेशन के माध्यम से है और जो स्कूलों में है या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ जाके अपने धर्म के बारे में बताना और हमारा जो कल्चर है उसके बारे में बताना। जो सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सभी में देखते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है, इस बात को हम बताएं। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि जो हमारे कनाडा के बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, वो इस भाव को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको जी रहे हैं, और जो हमारी कनेडियन वैल्यूज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा मिंगल करता है, हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का, जिस भारत भूमि से हम आते हैं। तो हमारा आगे का प्लान यही है कि हम अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को इंगेज करें, और जो हमारे धर्म को लेके कई लोग भ्रांतियाँ फैली हैं उनको दूर करें। ये हमारा धर्म है आने वाले, और ध्येय है आने वाले वर्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद। तरुण पॉल सिंह, PTC न्यूज़, कनाडा।